Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जय श्री गौर निताई की जय।
जय श्री प्रभुपाद जी की जय। जय। तो બધાને ગુજરાતી તો ફાવે જ છે ને? आपको गुजराती थोड़ी आई? थोड़ी आई कि नहीं आई? नहीं आई गुजराती अभी? तो थोड़ा गुजराती और हिंदी वैसे है ना, काफ़ी सिमिलर है। अब कोई आप कोई बोलेगा और आप सुनोगे ना बार बार, तो आधी तो वैसे ही आ जाएगी आपको गुजराती, और बाकी फिर थोड़ा बहुत सीखने से जाएगी वो। तो आज હું ગુજરાતી પણ મિક્સ કરીશ બોલવામાં, કારણ કે ઘણી વાર કેવું હોય છે કે પ્રોફેસર હોય ને આપણા કોલેજમાં, એ મૂડમાં હોય કોઈક દિવસ, તો એ જ્યારે મૂડમાં હોય ને પ્રોફેસર બહુ, તો શું થાય કે એ બુક્સનું ઓછું ભણાવે પણ એ દુનિયાદારી બહુ શીખવાડી જાય, એ રીતે આજે હું મૂડમાં છું એટલે બુક્સમાંથી ઓછું, બુક્સનું તો કરીશું જ, પ્રભુપાદજીએ કીધું છે તો બોલીશું જ, પણ બુક સિવાયનું પણ આપણે કરીશું, જેનાથી આપણે, હું એવું માનું છું કે રમતમાં જેટલું શીખી જઈએ ને એટલું फास्टली सिखाए थे। हम खेलते खेलते जो सीख जाते हैं ना जिंदगी के गुण और जिंदगी के क्वालिटीज़, वो जितना भी आप पढ़ते रहो उससे नहीं होता, खेलते खेलते में हो जाना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, अपना पर्सनल लाइफ में भी ये रखता हूँ कि इजी गोइंग और खेलते खेलते चीज़ हो ना, तो बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्टी भी धीरे से होकर चली जाती है। तो आज हम लेक्चर ऐसे ही रखेंगे। मुझे आदि गुरु प्रभु ने बताया था कि थोड़े कम जने होंगे आज, क्योंकि सब अभी समर हॉलीडेज़ में गए हुए हैं। तो मुझे वो याद आ गया एक बात, वो मेरे एक फ्रेंड हैं, अभी तो गुजरात में अंदर फ्लाइट चालू થઈ ગઈ છે, ખબર ને? આપણે ગુજરાતની બાને અંદર જવું હોય તો એ ફ્લાઇટમાં જવાય। હવે સુરતથી ડાયમંડ એરિયા છે એટલે ભાવનગર ને આ બધી જગ્યાએ ચાલુ થઈ ગઈ છે, રાજકોટથી। તો મારો એક ફ્રેન્ડ આ રીતે ઇન્ટરનલ ફ્લાઇટમાં ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ હતી એ ગયો, અને હી વોઝ અલોન ધ હોલ ફ્લાઇટ। તો પછી મેં પૂછ્યું તો ભાઈ ફ્લાઇટ વાળા બંધ ના કરી દીધી કે ભાઈ એકલા માટે શું લઈ જવું? તો કે હોતું હોય, पैसा આપી देता है फ्लाइट वालों को ले जाए ना, कहीं तो ना पड़े। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला है कि अगर फ्लाइट में एक जना होकर भी फ्लाइट जा सकती है, तो अगर इतने सारे सुनने वाले हैं, थोड़े बहुत कम है, तो भी सुनाने वाले को मज़ा आनी चाहिए, तो सुनने वाले को भी मज़ा आती है। अच्छा, एक बात ये थी कि आजकल जो मुझे बहुत अचंभित करती है ये बात, और ये बात मैंने बीच में एक उसमें भी बताई थी आपको, एक लेक्चर में भी, कि कैसे युधिष्ठिर महाराज और यमराज जो दूसरे फॉर्म में आए थे, और उन्होंने जब वो लोग वनवास में थे, तो जब वो पानी पीने गए, जब प्यास लगी, एक एक करके जो वहाँ पे यमराज जो यक्ष के फॉर्म में थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको जवाब देने पड़ेंगे मेरे। तो कोई उनके भाई जवाब नहीं दे पाए, और उन्होंने पानी पी लिया ये सोच के कि भाई जवाब का क्या, पहले हम पानी पियेंगे, और फिर वो मूर्छित हो गए। फिर युधिष्ठिर महाराज आए, फिर जब उनको भी ये बोला कि भाई आपकी भी ऐसी हालत होगी आपके भाइयों जैसी, तो उन्होंने सारे जवाब दिए। तो जो लास्ट क्वेश्चन जो उनको पूछा था, तो वो उन्होंने कहा आपको सबसे ज़्यादा चीज़ अचंभित क्या करती है दुनिया में? तो उन्होंने क्या कहा था कि लोग सब मरने वाले हैं और सब जीते ऐसे हैं कि हम मर ही नहीं सकते ऐसे, ये सबसे ज़्यादा अचंभित करती थी। और ये प्रैक्टिकली भी आज एक दो दिन में मैंने देखा। अभी मैंने जामनगर से पढ़ाई की है, अपनी MBBS की और पोस्ट ग्रेजुएशन भी। तो मेरे से जूनियर 2 साल, मेरा 97 बैच था जब ज्वाइन किया मैंने MBBS। 99 बैच वाले जो थे वो डॉक्टर अभी एक कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, और जामनगर में प्रैक्टिस कर रहे थे, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस जामनगर में, हार्ट के डॉक्टर, और बहुत अच्छे, उनका तो बहुत डिमांड है, हार्ट की तकलीफ तो आजकल बहुत होती है। 2 दिन पहले वो हार्ट अटैक से मर गए। 16,000 ऑपरेशन किए, वो पढ़ा ना आपने वो। बट वो उनको भी तो अचंभा की बात यह है कि ये लोग सब जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर और सुन के अचंभित हो जाते हैं, वो अरे भाई इंसान ही है, कभी भी जा सकता है। पर ये अचंभा है कि खुद कार्डियोलॉजिस्ट होकर चले गए, क्योंकि भारत में धारणा क्या है, डॉक्टर એટલે બધું જ ફાવે એમને, તો કશું જ ના થાય એમને, અમર થઈ ગયા છે એટલે તો કોઈ એમના હોસ્પિટલમાં મરી જાય એટલે તો ઝઘડો કરે
કે ભાઈ કેમને મરી ગયા, આ તો આજે હું લઈને આવ્યો તો માણસને તો અમર હતો, તમે કેમનું મારી દીધું? એવું તો શક્ય જ નથી. એવી હાલતમાં લઈને આવ્યા હોય એકદમ ખરાબ હાલતમાં, પણ ડૉક્ટરને ત્યાં તો બચી જ જવું જોઈએ. અમર એટલે ડૉક્ટર ત્યાં બચી જવું તો ડૉક્ટર કેમનું પોતે કેમનું મરી જાય? એ પણ હાર્ટના ડૉક્ટર છે, હાર્ટના જ ટ્રીટમેન્ટ કરે છે. પછી લોકો શું કરે, પછી પેલું આપણો વૈદિકમાં છે ને કે એક ને એક વસ્તુ ચાવવાની વારંવાર, એટલે પછી વર્ષોથી આવું થતું આવ્યું છે. આ પહેલો કિસ્સો નથી. એટલે પછી ડૉક્ટર્સ શું બુક કાઢે જે કંટાળી ગયા હોય લાઈફથી, પછી ડૉક્ટર્સ હીલ ધેમસેલ્સ એવું કરીને બુક કાઢે મોટી. એમાં લખ્યું હોય કે તમારે એક્સરસાઇઝ કરવાનું, સ્ટ્રેસ દૂર કરવાનું, આમ ને તેમ, પણ કઈ રીતે કરવાનું કશું ન લખ્યું હોય. બરાબર, સ્ટ્રેસ દૂર કરવાની તમારી, અને એન્ઝાયટી નહીં લેવાની, ને આ નહીં કરવાની, કઈ રીતે કરવાની એનું કોઈ સોલ્યુશન ના હોય. પણ પછી એ બુક બહુ વેચાય, બહુ બધા વાંચે, ડૉક્ટરો માટે છે, ડૉક્ટર માટે વાંચો કેટલું સરસ લખ્યું છે. પછી 10-15 દિવસ વર્ષ પછી ફરીથી એક આવો કિસ્સો બને, ફરી કોઈ ડૉક્ટરે લખવાનું ચાલુ કરે કે ચલો હવે લખીએ, આપણે બુક લખીએ. એટલે આ ચાલતું જ આવ્યું છે, ચાલતું જ આવ્યું છે. उसका कोई एंड नहीं है. डॉक्टर भी मरते हैं. और अभी तो आज के दिन का ही है, मेरे घर के पीछे एक, जहाँ मैं रहता हूँ आनंद में, मेरे घर के पीछे ही एक फैमिली है. वो यंग ही इंसान था, आज सुबह साइकिल पे जा रहा था और हार्ट अटैक आके मर गया. तो लाइफ बहुत शॉर्ट है, किसी का कुछ पता नहीं है कब इंसान, सादी भाषा वो बोले तो टपक जाए. आज हम भी बैठ के बात कर रहे हैं, कल हम भी इधर है कि नहीं किसी को पता नहीं. तो प्रभुपाद जी यही समझाने की कोशिश करते रहे अपने, जब से वो गए अमेरिका, और जब से उन्होंने समझाया कि भाई आप सोल हो, आप बॉडी मत समझो अपने आप को. जो आज की तारीख में पूरी दुनिया में लोग अपने आप को शरीर से ही लेते हैं, इसलिए तो बोलते हैं ना, मैं अमेरिकन, मैं हिंदू, मैं क्रिश्चियन, मैं मुस्लिम, मैं वो औरंगजेब का लेके आऊँगा तो वो झगड़ा हो जाएगा हर जगह, लव जिहाद, ये सब क्यों है? आप बॉडी से ही रिलेट करते हो. जिस समय आप सोल से रिलेट करोगे तो पाकिस्तान में भी इस्कॉन का मंदिर है, चाइना में भी है, नहीं तो ऐसी दो जगह तो कोई सोच ही नहीं सकता है. चाइनीज पब्लिक जो मिले वो उड़ा के खा जाने का. આમ મારું એક પિજન પડ્યું નીચે, કબૂતર, એને કાપે ખાઈ ગયા. ઉંદેડું મળ્યું ઘરે ફરતું, ઉંદેડાને પકડ્યું, કઢાઈમાં નાખ્યું, ખાઈ ગયા. કોકરોચ મળ્યું, કોકરોચને ખાઈ ગયા. આવી જગ્યા पर इस्कॉन हो, અને जिनके साथ हमारे रिलेशंस एकदम उल्टे डायरेक्शन में, पाकिस्तान ऐसी जगह पे इस्कॉन होना हो तभी हो सकता है जब इंसान ये समझे कि भाई हम सोल हैं, हम बॉडी नहीं है. तो यही प्रभुपाद जी इतने सालों से बोलते रहे. तो आज हम वही, जो जैसे मैंने आपको बोला कि वो एरोप्लेन में जा रहे थे, एक अकेले थे फिर भी गए, तो आज हम वही जर्नी करेंगे. तो आप अपनी कुर्सी की पेटी आप बांध लें और अगर ऑक्सीजन डाउन हो तो पहले खुद का केयर रखें, मतलब पहले खुद समझे फिर बाजू वाले को समझाएं, जो आज सीखेंगे वो. ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं इसमें. अभी आपको पता है मैं हमेशा फिलोसॉफी पे ही लेक्चर लेता हूँ, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये फिलोसॉफी समझना इस्कॉन की और प्रभुपाद जी जो कहना चाहते थे वो बहुत ज़रूरी है. आपने पूरी भगवत गीता पढ़ ली, और अगर आप फिलोसॉफी नहीं समझे, क्योंकि एक थियोरेटिकल नॉलेज होना और एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ही डिफरेंट है. तो आपको थियोरी के साथ प्रैक्टिकल भी आना चाहिए. फिलोसॉफी जो है वो एक तरह की प्रैक्टिकल है. तो प्रभुपाद जी आज हम जो चर्चा करेंगे वो है साइंटिस्ट के ऊपर. जैसे साइंटिस्ट के क्यों प्रभुपाद जी हर बार अपने भाषण में रास्कल 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 यूज करते थे उनके लिए. प्रभुपाद जी कहते थे कि साइंटिस्ट लोग क्या समझते हैं, जैसे भारत में तो चलो फिर भी लोगों को कुछ आत्मा के लिए बोले तो उनको कुछ आइडिया होता है कि भाई आत्मा है, हाँ भाई है, वहाँ तक आता है उनको पता होता है. पर फॉरेन में या साइंटिस्ट में वो लोग क्या बोलते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं या फॉरेन में, वो बोलते हैं कि भाई ये जो बॉडी बनी हुई है वो क्या है, आपका मल मूत्र है, हड्डी है, ऊपर की मसल है, यही सब चीज़ों से बना है. ठीक है, उसमें कोई सोल वोल की तो दूर दूर तक बातें नहीं करते. वो कहते हैं कि बस इसी तरह से आपका जो लाइफ बनी, ये जो आत्मा आई, हो सकता कुछ नहीं है, बट ये जो मैटर ही है, ये जो चीज़ें. तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सोल नहीं है, सिर्फ मैटर से बनी हुई चीज़ें हैं,
तो एक मरा हुआ इंसान पड़ा हुआ है, उसके अंदर साइंटिस्टों ने ढूंढो क्या चीज की कमी है और वो डाल दो। अगर आपको लगता है कि इसमें मैटर से बनी है ये चीज, बॉडी मैटर से बनी है मतलब ये मल मूत्र से बनी है और मसल से बनी है, केमिकल से बनी है, तो केमिकल ढूंढ लो और इंजेक्शन दे दो केमिकल का, जिंदा हो जाएगी बॉडी। वो तो कर नहीं सकते। अभी आपने देखा होगा पेपर में भी हर रोज वो पता है वो लीफलेट निकलते हैं अंदर से, जाइडस का निकलेगा 5,000 ની તપાસ 1500 માં 8,000 ની દવા એવું લાગે કે કરાઈ જ લઈએ, કશું જ ના હોય તો કરાવી લઈએ, 1500 માં થાય છે ને 6,000 ની કશું ના હોય તો કરાઈ તો લઈએ રિપોર્ટ, પછી શું થાય આમાં ફસાઈ જઈએ પછી, કેમ? કારણ કે એક રિપોર્ટમાં કશું આવું આડું અવળું આવી ગયું એટલે આપણે આપણી ટેન્શન આમ ને આમ થઈ ગઈ, કશું ના હોય ને તો થઈ જાય। આજે મારી પાસે એક કેસ આવ્યો, બાળક 10 વર્ષનું બાળક અને 50 કિલો, અને મમ્મી કે મને ડાયાબિટીસનો શક છે અને છે। મેં કીધું તમને કેમ લાગે છે કે કોઈ ચિહ્નો છે કે ના આમ લાગે છે ડાયાબિટીસ હોય એવું? મેં કીધું જો આજે રિપોર્ટમાં ના નીકળે ડાયાબિટીસ તો થઈ જશે 2 વર્ષમાં, એટલે તમે વજન ઓછું નહીં કરો ત્યાર સુધી નહીં થાય। એટલે માટે એટલે કહેવાનો અર્થ એ છે કે જે મૂળ કારણ છે ને જે બીમારીઓ એની પાછળ લોકો નથી જતા। હવે એ બાળકમાં મૂળ કારણ હતું કે ટીવી જુએ, ખાય, બસ આખી વેકેશન એ જ કર્યું, એટલે મૂળ કારણ સુધી તમે ના પહોંચો જ્યાર સુધી। તો હવે પ્રભુપાદજી શું કહેતા હતા, મૂળ કારણ આમાં શું તકલીફ છે, જે મેં તમને કીધું ઝાયડસવાળા જ કાઢે તમારે, કારણ કે આપણે શેની જોડે કરીએ છીએ, બોડી જોડે કરીએ છીએ, એટલે તો યુરિનની રિપોર્ટ કરો, સ્ટૂલની રિપોર્ટ કરો। પ્રભુપાદજી એવું કહેતા હતા કે તમે જિંદા માણસને તો રિપોર્ટ કરો છો ને સ્ટૂલ અને યુરિન, અને તમે માનો છો કે કેમિકલથી બનેલી છે બોડી, તો મેટરથી બનેલી છે, મરેલું માણસ છે એની રિપોર્ટ કરી લો, સ્ટૂલની રિપોર્ટ કરો, યુરિનની રિપોર્ટ કરો, આ તમે એમાં ખામી દેખાય એ આ વસ્તુ નથી, ઇન્જેક્શનથી આપી દો। સાયન્ટિસ્ટને એવું જ સવાલ કરતા હતા, એટલું બેઝિક ક્વેશ્ચન જે આપણને એવું લાગે સાંભળીને કે યાર આટલું સિમ્પલ, આવું બેઝિક ક્વેશ્ચન, પણ આટલું બેઝિક ક્વેશ્ચનને પણ દે કેનોટ આન્સર, એટલે प्रभुपाद जी શું कहता था, रास्कल साइंटिस्ट ने। अच्छा, अभी दूसरी चीज क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमने सिर्फ इतना जान लिया कि हम सोल हैं, हमारे अंदर सोल है, अभी ये डिस्कशन से इतना तो पता पड़ गया हमें कि अभी हम एक डिस्कशन को दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के तीसरा, ऐसा कड़ी बनाएंगे। तो पहला क्या आया कि भाई हम केमिकल्स नहीं है, हमारे अंदर सोल है, ठीक है, ये इससे डिस्कशन हुआ कि भाई अगर मरा हुआ इंसान है उसमें आप कोई रिपोर्ट कराते हो और अगर आपको ऐसा लगता है साइंटिस्ट को कि वो केमिकल से बनी हुई, तो वो केमिकल की कमी आई वो दे दो और जिंदा कर दो, और वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इनडायरेक्टली शो करता है कि भाई वो सोल से वो कोई चीज़ थी उसके अंदर, कि जिंदा इंसान का ही हम यूरिन और ब्लड रिपोर्ट करा रहे थे, मरे हुए के नहीं करवा रहे थे, तो कोई चीज़ ऐसी थी जो चली गई है, तो वो सोल है, इससे होगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं यही काफ़ी नहीं है, अगर आप ये समझ लो कि हम सोल हैं और हम खुश होगा कि भाई हमने इतना समझ लिया, तो वो काफ़ी नहीं है। जैसे कि हम अगर कोई बोले कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं बंदर भी वेजिटेरियन है, तो वो काफ़ी नहीं है कि वेजिटेरियन हो उसके। उसी तरह से इतना से जानकारी मिल गई सोल हो उतना काफ़ी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों अंबानी के घर पैदा नहीं हुआ, उसने ऐसा क्या किया कि उसको वहाँ पे जन्म मिला, और क्यों एक को भिखारी का जन्म मिला, क्यों एक को कुत्ते का जन्म मिला। अगर मैं सोल हूँ और मुझे पता पड़ा है भाई ये लेक्चर से थोड़ा बहुत कि भाई सोल सब में है, एक चींटी में भी है, एक इंसान में भी है, एक पेड़ में भी है और एक पानी के जंतु में भी है, जीव में भी है, तो क्यों उसको वो जीव क्यों मिला और मेरे को ये क्यों मिला? तो आप में से कोई उसका आंसर देना चाहेगा कि क्यों उस कुत्ते की बॉडी मिली उसको, क्यों मुझे इंसान की मिली, क्यों जीव अलग अलग क्यों मिले? हाँ, कर्म, ठीक है। तो ये कड़ी ज्वाइन हुई इससे कि हमारे कर्म की वजह से, कर्म कौन से? पास्ट कर्म, पास्ट कर्म से हमको ये बॉडी मिली। इसका मतलब है कि इसके जो अभी हम कर्म करेंगे उसके अगले वाली मिलेगी, तो हम अभी अपने कर्म सुधार सकते हैं। अगर हमें पास्ट कर्म से ये बॉडी मिली तो हमें पता है कि भाई अच्छी बॉडी पास्ट कर्म से मिलती है। कोई अंबानी के लड़के ने कुछ किया होगा पिछले जन्म में तो उसको वहाँ पे जन्म मिला, हमें नहीं मिला। तो हम अगर कोई अच्छी चीज़ चाहते हैं, चलो ये तो मैंने आपको एक उदाहरण के रूप में दिया क्योंकि लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं इसलिए,
पर अगर हम कोई अच्छी चीज़ चाहते हैं नेक्स्ट लाइफ में, अगर हम भगवान के बहुत नज़दीक जाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि इस दुनिया में आप जितना भी भगवान की पूजा करोगे वो मिटेगी नहीं। वो अगर आप बैंक में बैलेंस डालते हो जैसे, तो अगर हम मर जाते हैं तो बैंक बैलेंस हमारा कुछ नहीं होता ना फिर। और भक्ति क्या है, अगर हमने 5 रुपए भी डाले तो वो नेक्स्ट जिंदगी में 5 रुपए से ही शुरू होगी, वो जीरो से शुरू नहीं होगी भक्ति हमारी नेक्स्ट लाइफ में। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट लाइफ अच्छी चाहिए तो क्यों ना हम बैंक में ज़्यादा डालें। तो बैंक में ज़्यादा डालने का मतलब क्यों ना हम कर्म अच्छे करें इस दुनिया में, इस जिंदगी में, जिससे हमें नेक्स्ट जिंदगी अच्छी मिले। ठीक है, अब बात ये आती है कि कर्म अच्छे करें, तो कर्म का मतलब क्या है, किसने जवाब दिया था कर्म का? तो आप बताइए फिर कि कर्म क्या है, क्योंकि भगवत गीता में 3 डेफिनेशन, कर्म भी है, विकर्म भी है, अकर्म भी है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, तब तक आप ये कैसे ढूंढ पाओगे कि भाई कर्म अच्छे करने हैं इस जिंदगी में। कोई भी सिटीजन होता है, तो कोई भी सिटीजन जो होता है, तो गवर्नमेंट ने कुछ अपने गवर्नमेंट कोड्स बनाए होते हैं। अगर हम वो लॉज को हम लॉफुल बनेंगे तो उसी प्रकार से हमारा प्रमोशन भी हो सकता है। पर अगर हमने लॉ ब्रेक किया है तो हमारा डिग्रेडेशन होता है। सिमिलरली एज ए ह्यूमन बीइंग, अभी हम एज ए स्पिरिट सोल है, लेकिन ये हम अभी राइट नाउ ह्यूमन स्पीशीज में हमारा एंटेंगलमेंट हुआ है। उसी प्रकार से जो जितने भी स्पिरिट सोल है और जितने भी स्पीशीज है, तो उसके ऊपर एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, उसने भी यूनिवर्सल कोड बनाए हो जिसको हम शास्त्र बोलते हैं। अगर हम उसका फॉलो करेंगे मैं आपका सब समझ गया, मेरा प्रश्न अलग था। मैं पूछ रहा हूँ कि कर्म क्या है। तो उसके हिसाब से उसने जो भी प्रिस्क्राइब किया है, अगर उसके हिसाब से हम करते हैं तो ये एग्जैक्ट कर्म हुआ। अगर उसके टोटली विरुद्ध करते हैं तो विकर्म हुआ। और हम भक्ति करते हैं डायरेक्टली भगवान को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, वो कर्म हो गया। हाँ, वैसे हम डेफिनेशन से क्या समझेंगे, अकर्म ऐसा लगेगा जैसे हमें कर्म करना ही नहीं है। अकर्म ऐसा लगेगा कि बैठ जाओ कुछ भी नहीं करो। अगर आपको तो शास्त्र आपने पढ़े हैं, आपको पता है, इसलिए। बाकी आप कोई ले पर्सन को पूछोगे कि अकर्म क्या है, तो वो सामान्य हिंदी के हिसाब से क्या बताएगा, बैठे रहो कुछ नहीं करो, मतलब अकर्म। जिसको ये नॉलेज ही नहीं है कि अकर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसको ये कैसे पता पड़ेगा कि मुझे इस जिंदगी में अच्छे कर्म करने हैं। तो अकर्म जैसे आपने बोला, एकदम सही बोला। अकर्म का मतलब ये नहीं कि हम आइडल बैठ जाएं। हम अपने जो भी कर्म करें, जो भी चीज करें, वो भगवान को समर्पित करके करें, भगवान के लिए करें, तो अकर्म हो जाता है। और विकर्म मतलब शास्त्र के विरुद्ध करें। और कर्म मतलब जो हम अभी कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ ना कुछ इच्छा होती है लेने की, कि भाई हमें ये इसका फ्रूटफुल एक्शन मिले, हमें इसमें से कुछ मिले, अगर हम भगवान की भक्ति करें इसमें से हमें कुछ फायदा हो, ये सारे कर्म जो हम बोलते हैं वो। तो ये कर्म है, विकर्म है और अकर्म है। तो इतना हमें, इतना अभी तक पता पड़ा कि अगर हमें ये जानना जरूरी है कि हम केमिकल्स नहीं हैं, हम सोल हैं। उसके बाद ये जानना जरूरी है कि अगर हम सोल हैं तो हम ये कैसे, यहाँ तक ही सोचना इनफ है कि ये सोल में कैसे आए और दूसरे दूसरे अलग अलग सोल्स क्यों हैं। तो उसके बाद से हमें पता पड़ा कि हम हमारे कर्म की वजह से हैं ये। ठीक है, अब वो कर्म क्या है वो हमें पता पड़ा आज। अब इसकी नॉलेज होना जरूरी है। अगर जैसे कोई डॉक्टर कहता है कि भाई आपको ये बीमारी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अगर मैं आज बाहर जाके पानी पूरी खा लूं गर्मी के सीजन में, और मुझे 2 दिन बाद मयड़ा हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला मैंने खबर नहीं डॉक्टर केम थे गयो वो। तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने वो खाया इसकी वजह से हुआ, तो मैं क्या हूँ, इग्नोरेंस में हूँ। नॉलेज क्या है, मुझे पता होना कि भाई आ खावाथी મને આ થયું છે એટલે હવે ખાવું नहीं। तो ये जानना, जो मैंने आपको ये उदाहरण इसलिए दिया कर्म अकर्म विकर्म का, उसके हिसाब से ये उदाहरण दिया कि आपको ये जानना जरूरी है कर्म क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कर्म विकर्म अकर्म क्या है, तो उस तरह से ही आप जैसे पानी पूरी खा के चले गए डॉक्टर के पास और आप बोल रहे हो मुझे पता ही नहीं क्यों हो गया, तो वो आपको नॉलेज नहीं, वो इग्नोरेंस है। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये किया, इसकी वजह से आपको ये सहन करना पड़ा, ये कर्म ऐसे किए इसलिए इसकी वजह से आपको ये बॉडी मिली। अब ये है कि अगर कर्म करने हैं तो कर्म, हम सादी भाषा में कर्म, हम जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हम वो, हाँ जी, जैसे आपने बताया कि हमारा कोई पास्ट जो भी कर्म था उसके रिजल्टेंट एक्शन के रूप में हमने अलग अलग जो डिफरेंट परिवार से, मतलब समाज है उसमें हमारा जन्म हुआ है।
लेकिन अभी जो नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले जो भी साइंटिस्ट है वो ऐसा बता रहे हैं कि पास्ट में आपके पास कोई बॉडी होगी, लेकिन हमारे पास तो सॉलिड एविडेंस है नहीं कि जो भी एथेइस्टिक है उसको बताने के लिए कि आपका भी पास्ट पर मतलब ये स्पेसिफिक स्पेसिस में हुआ था, तो ऐसा हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो हम क्या उसको कह सकते हैं? देखिए, एक होता है फेथ, और फेथ हम दो चीज़ों पे कर सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी पे कर सकते हैं या फिर मैटरी पे कर सकते हैं। जो चीज़ दिखती नहीं है, जैसे सोल दिखता नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर आप उसका मेजरमेंट तो भगवत गीता में दिया है 1/10,000 हेयर का जो उसका भाग है, तो वो भी दिखता नहीं है। तो आप पहले तो ऐसे लोगों को यही कैसे बताओगे कि सोल है? कर्म तो चलो बाद में आया, पहले ऐसे लोगों को तो वहीं पे अटक जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। वो लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं जो मैं देखूंगा वही मानूंगा, राइट? वैसे ही लोग हुए जो ये बोलते हैं मैं देखूंगा वो मानूंगा। पर हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं कि आपको श्रुति जो होता है, जैसे आप एक प्रत्यक्ष अनुभव करते हो कोई चीज को, तो मैं देखूंगा तो मानूंगा, तो इन सब में सबसे एक हाइपोथेसिस करते हो कि ऐसा हुआ होगा, स्पेकुलेशन। और एक होता है ज्ञान जो स्क्रिप्चर्स से आता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी आपके ये अलग अलग आपको ज्ञान लेने के तरीके हैं, एक प्रत्यक्ष है जैसे, तो उन सब में से सबसे बड़ा ज्ञान लेने का तरीका कौन सा है? तो आप जो स्क्रिप्चर्स है उसको पढ़ो। अब उसमें फेथ होना जरूरी है। किसी को फेथ है ही नहीं तो वो तो आप उसको जिंदगी भर बोलते रहोगे तो वो नहीं मानेगा। फेथ जिसको है नहीं, वो फेथ किसको नहीं होगा? तो भगवान वो भी 7 पॉइंट समथिंग में कहते हैं कि जो नराधम है, जो मूढ़ है, उनको कभी भी मेरे पे विश्वास आएगा ही नहीं। तो पहले तो उनको नियर बर्थ एक्सपीरियंस, लास्ट उसके कर्म की, उससे पहले तो उनको पहले सोल का रियलाइजेशन होना चाहिए। जिसको सोल का रियलाइजेशन हो गया और जिसने सेकंड चैप्टर भगवत गीता का ठीक से समझ लिया कि भाई सोल को हम मार नहीं सकते, सोल जिंदा रहता आया है, हम पहले भी थे, पहले उसको ये रिलेशन कराना पड़ेगा, तब वो ये चीज मानेगा। क्योंकि अगर आप ये मान गए कि हम मर ही नहीं सकता, सोल पहले से जिंदा रहता है। भगवत गीता में भगवान ने भी अर्जुन को कहा कि तुम भी पहले थे, मैं भी पहले था, मैंने भी तुम्हें ये पहले बताया हुआ, तुम्हें याद नहीं है, क्योंकि भगवान ही हमें स्मृति और विस्मृति देते हैं। अगर कोई ये समझ जाए तो उसके लिए डाइजेस्ट करना इजी होगा ये चीज। और अगर कोई ये सेकंड चैप्टर ही समझने को रेडी नहीं है, फिर हम उसको 18वां चैप्टर समझाने जाएंगे। भगवान ने कहा है कि आप मेरे को सरेंडर कर दो, अभी उसको सेकंड चैप्टर समझे तो 18वां चैप्टर तो दूर करा। तो वो जो आप बोल रहे हो वो एक तरह से 18वां चैप्टर है, मतलब उसके लिए अगर वो सेकंड चैप्टर समझ जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने का इजी हो जाएगा। पर उसको पहले ये सेकंड चैप्टर ही समझना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्टली 18वें चैप्टर पे जंप करना जाएगा तो नहीं चलेगा। और अगर कोई नहीं समझ रहा है तो ये फेथ के ऊपर होता है। अगर आपको फेथ है ही नहीं तो उसको आप जिंदगी भर बोलते रहो, वो नहीं होगा। फिर तो उसको फेथ कब आएगा? जब डेथ सामने आएगी तब। भगवान कहते हैं अगर आपको पूरी जिंदगी भर मेरे पे फेथ नहीं है, पर डेथ आएगी तब तो फेथ करना ही पड़ेगा, फिर डेथ सबको फेस करनी होती है। भगवान कहते हैं खुद मैं भी एक मृत्यु हूँ जब मैं सामने आता हूँ, तो उसको अभी नहीं तो बाद में करना पड़ेगा। जब वो अभी नहीं मानेगा, वो यमराज के पास जाएगा, वो उसकी लाइफ का देखेंगे, अच्छा ये किया था, अब आपको ये मिल रहा है, तब सोचेगा पहले मानी लीधो तो सारू रहेगा, नीचे कीधું તું મને કે પેલા માની લીધું તો સારું રહ્યું, હવે નહીં માનો તો હવે જાઓ, હવે કરો, ફરતા આવશો કરોડો વર્ષ પછી ફરીથી હ્યુમન લાઈફમાં, બરોબર? ત્યારે જઈને એને થોડી અકલ આવશે, એ થોડી અકલ આવશે ત્યારે બ્રહ્મકુમારીમાં જશે, પહેલા બ્રહ્મકુમારીમાં જશે, પછી ફરીથી જ્યારે થોડું એટલે ધીસ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ. પણ આ જે છે પ્રભુપાદજી શું કહે છે, લિફ્ટ છે. પ્રભુપાદજીએ જે આપણને આપ્યું છે દેટ ઇઝ લિફ્ટ, બાકી બધા પગથિયા છે. અને જે નથી સમજતા હોય તો બિચારા એને એ જ ખબર નથી પગથિયા છે કે નહીં, પણ બાકી બધી વસ્તુ પગથિયા છે જે આપણે ધીરે ધીરે ઉપર લાવે. આ લિફ્ટ છે સીધી ઉપર, કારણ કે ધીસ ઇઝ ધ પ્રોપર વે એન્ડ મેથડ. કારણ કે એઝ ઇટ ઇઝ ભગવદ ગીતા જે ભગવાને કીધું છે એ જ, खुद का कोई स्पेकुलेशन नहीं, खुद का कुछ, जो भगवान ने कहा है वही. ठीक है, क्लियर वो चीज. अभी है कि हमें कर्म करना है तो हम कर्म को और डिवाइड करते हैं और बेसिक उसमें जाते हैं. हम कर्म कैसे करते हैं? हमारी पहले बुद्धि हमें कहती है. अभी जैसे लास्ट टाइम मेरा फोन आ गया था, फोन उठाया, साहब पेशेंट आयो છે ને बीमार વધારે છે, એ કહે છે સાહેબ ક્યારે મળશે? मेरी बुद्धि चली गई, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ का लेक्चर ले सकता हूँ या फिर वहाँ जा सकता हूँ. मेरी बुद्धि ने कहा कि भाई बच्चा बीमार है तो अब मेरे को यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा. तो मैंने आप लोगों को बोला कि भाई आज का लेक्चर आधा बीच में से खत्म करता हूँ. बुद्धि ने ऐसा बोला, फिर माइंड के पास गई वो बात. बुद्धि के नीचे है माइंड. माइंड ने कहा साची बात है, कपिल का तो जવું तो पड़શે હવે,
फिर मेरे सेंसेस ने कहा तो भाई अवयव वो था, तो मेरे पैर चले, हाथ चले, फिर मैं यहाँ से चल के नीचे गया। तो अगर हम कर्म को भी और डिवाइड करें तो इस तरह से ये बुद्धि, फिर माइंड और फिर सेंसेस पे आता है, तो हम कर्म करते हैं। अब इसमें से तीनों चीजों में से सबसे पावरफुल क्या है? माइंड। क्योंकि अर्जुन ने क्या कहा, भाई भगवान को मना कर दिया, भाई ये जो आप बोल रहे हो ना मुझसे तो नहीं होगा, माइंड तो बहुत चंचल है, मुझसे ये आप जो बोल रहे हो वो नहीं हो पाएगा, माइंड तो बहुत चंचल है, मैं कैसे उसको कंट्रोल करूँ? तो भगवान ने कहा माइंड ही सबसे अच्छा फ्रेंड है और सबसे खराब दुश्मन भी वही है। तो अगर हम माइंड को क्लियर, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अगर हमें अकर्म करना है तो हमें माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। पहले केमिकल और सोल के बारे में डिफरेंस किया, फिर हमने उससे स्टेप आगे सोचा कि भाई मेरे को ये बॉडी क्यों मिली, उसको कुत्ते को क्यों मिली, तो भाई मैं अगर सोल हूँ तो मैंने कर्म ऐसे किए होंगे, तो कर्म क्या है, तो वो हमने डिस्कस किया, कर्म अकर्म विकर्म। अकर्म मुझे करना है तो उसके लिए अगर हम और बाइफरकेट करता हूँ तो मुझे माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा, बुद्धि, माइंड और फिर सेंसेस। तो माइंड कंट्रोल कैसे होगा, वो जरूरी है। माइंड कंट्रोल करने के लिए आपको सीधे, जिसको लिफ्ट पता है वो तो सीधे भगवान के शरण में आएगा, पर ऐसे कितने आएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? रामदेव के पास, योगा करो क्योंकि उनको ये पता है कि ત્યાં સુઈ જવાનું, શવાસનમાં મજા આવે, સુઈ જવાનું એટલે આપણે માઇન્ડ કંટ્રોલ। उनको ये नहीं पता वो 5 मिनट के लिए होता है, बाहर आके तो फिर वही स्ट्रेस, फिर वो माइंड कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसे लोग फिर भगवान ने कहा योगा करना चाहिए। तो योगा का मतलब ये नहीं है कि आप जोर जोर से सांस लगाओ, प्राणायाम का वो करो, ये एक्सरसाइज करो। योगा का मतलब भगवान ने बताया कि भगवान से जुड़ना, उसको योग कहते हैं। योग ये नहीं है कि आप इस तरह से करो, भगवान से जुड़ने को आप जो चीज़ करोगे उसको योग कहते हैं। उसका अभी नया नया फैशन आ गया है, ये योग का नया तो नहीं, अभी काफ़ी टाइम से योगा के क्लासेस इतने होते हैं, सुबह सुबह आप जाओ तो योगा के क्लासेस, इधर क्लासेस उधर क्लासेस, वो बॉडी को मूवमेंट, वो लचक बॉडी को करना, वो योगा नहीं है। आजकल योगा में क्या कराते हैं, बॉडी का लचक। भाई आपको बहुत हार्ड है, आप स्ट्रेट नहीं बैठ पाते हो, 1 કલાકમાં તમને પાછળની જરૂર પડે છે દીવારની, તો ભાઈ તમે યોગા કરશો ને મહિનો એટલે તમે આગળ બેસી શકશો, તમે આ લોકોને જેમ वो योगा में सिखाते हैं आज की तारीख में। तो वो योगा नहीं, योगा है भगवान को कंट्रोल, भगवान के साथ हमारा माइंड का करना। तो माइंड को कंट्रोल हम योगा से कर सकते हैं। अभी माइंड को कंट्रोल करना इतना तक हमने सीख लिया। अब यह है कि ये कारण जो होता है कि हमें ये बॉडी क्यों मिली, ये शास्त्र हमें बताते हैं, ये हम शास्त्र से जान सकते हैं। जो शास्त्र चक्षु होता है, शास्त्रों की आंखों से देखता है, वो ये जान सकता है कारण, क्योंकि हर चीज का कारण जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं उसकी क्या कराता हूँ, ब्लड रिपोर्ट। मैं ऐसे तो नहीं बोलता था टाइफॉइड से तने डेंग्यू છે, ધીરેન્દ્ર शास्त्री माइंड रीड कर लीधું છે तने આવું, ऐसे तो नहीं करता ना डॉक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी ब्लड रिपोर्ट, सोनोग्राफी कराऊंगा, जरूरत पड़ी तो यूरिन रिपोर्ट कराऊंगा, स्टूल रिपोर्ट कराऊंगा, भाई फिर मैं एक डायग्नोसिस से पहुंचता हूँ कि भाई તમને तो टाइफॉइड है ना, आ बीमारी है ना, आ दवा लेनी पड़े। तो कारण शोधा ना, कारण ढूंढा ना मैंने उसका। तो ये बॉडी का भी हमें कारण ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सीधे ही ऐसे बाई चांस मुझे ह्यूमन शरीर मिल गया। भगवान को प्रभुपाद जी कहते हैं बाई चांस ऐसा कहीं डिक्शनरी में है ही नहीं, वेद में, वेदों में। बाई एक्सीडेंट या बाई चांस कोई चीज होती है, ऐसा होता नहीं। हर एक चीज का कारण होता है, तो कारण ढूंढना जरूरी है। ठीक है, अब यह है कि ये नॉलेज देगा कौन? आज की तारीख में ये नॉलेज इंसानों को देगा कौन कि भाई ये कारण ये है आपका, आप कारण अपने आप जान सकते हो कि भाई क्यों उसको ये बॉडी मिली है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए इसलिए उसको ये बॉडी मिली है, तो अब हमें ये कर्म ऐसे करना। ये ज्ञान देगा कौन लोगों को? अब ज्ञान कौन देता है? जिसको नॉलेज होती है। आप कॉलेज में जाते हो, आपसे कम पढ़ा हुआ है, उसको नहीं ज्ञान है, वो तो प्रोफेसर जाके वो ज्ञान नहीं देता ना। तो आपसे ज्ञान कौन देता है? जिसको आपसे ज्यादा उस चीज के बारे में नॉलेज हो। बच्चा अपने पापा के पास जाता है, छोटा होता है, तो पापा आ શું છે? मोबाइल, आ શું છે? आ શું છે? आ શું છે? हर जगह आ શું છે? पापा उसको जो बोलते हैं, अगर इंसान को सही गुरु मिल जाए, जैसे बच्चे के लिए उसका गुरु कौन है? फादर। भले वो छोटी छोटी चीजें बता रहा हो, उसके लिए बेस बना रहा है बच्चे के लिए। वो कल उठ के वो पूछेगा कि ये क्या है, तो उसको कल मैं बच्चे को पूछूंगा 2 साल बाद, तो वो भूल पाएगा ये मोबाइल। क्यों?
क्योंकि उसको ज्ञान मिला था उनसे, और वो राइट डायरेक्शन में ज्ञान होगा। तो ये नॉलेज कौन देगा? गुरु देंगे। भगवान कहते हैं गुरु की सहायता के बिना आप भगवान को नहीं पा सकते। और गुरु भी कौन? आसाराम देवा नहीं, वो भी गुरु है ना ऐसे तो, और आसाराम बापू देवा नहीं। तो राइट डायरेक्शन में राइट गुरु आपको मिलते हैं तो वो आपको भवसागर पार करा सकते हैं। अगर आपको गुरु ऐसे मिल गए जिनको सादी भाषा में गुरु घंटाल बोलते हैं, आसाराम बापू जैसों को, तो वो आपको और नीचे ले जाएंगे ऊपर ले जाने के बदले, और फिर आप नीचे 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 पाताल लोक में जाओगे उनके साथ, जब वो जाएंगे उनके साथ यहाँ भी। तो आपको फेथ होना चाहिए, और फेथ होना चाहिए सही इंसान पे। जैसे आपको रोड क्रॉस करनी है, आपकी आंखें नहीं हैं, आप अंधे हो और आपको रोड क्रॉस करनी है, और मेरे बाजू में कोई खड़ा है, मुझे पता है कि वो भी अंधा है, मैं उसको तो रोड क्रॉस करा दो ना, तो क्या होगा? तो आपने राइट पर्सन को नहीं चुना। तो राइट पर्सन चुनोगे तो ही रोड क्रॉस कर सकते हो, उसी तरह से राइट गुरु को चुनोगे तो ही भवसागर को पार कर पाओगे। दूसरा है आपको फेथ होना चाहिए, और फेथ सही पर्सन पे होना चाहिए। फेथ होना और सही पर्सन पे होना दो बहुत जरूरी चीजें। वार कपाव जाओ છો ને જરૂર વારંવાર પડે છે ને, થોડા ઉગે એટલે ઇસ્કોનમાં બહુ પૂછता था लोगों बाहर, फॉरेन में लोग बहुत पूछते थे, जब भी इंटरव्यू लेने जाते थे प्रभुपाद जी तो उनको पूछते थे ये शेव हेड क्यों करते हैं आप, यही कपड़े क्यों पहने हम, कि जरूरी है शेव हेड करना और ऐसे कपड़े पहन के ही आना? तो प्रभुपाद जी कहते थे नहीं, ये शेव हेड करना क्लीनलीनेस के लिए है, और आप ये कपड़े पहनते हो इससे आपको पता पड़ता है, पुलिस वाले होते हैं तो पुलिस वाले की ड्रेस पहनते हैं तो आपको पता पड़ता है कि भाई ये भगवान के भक्त हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई है ना बाल पूरा रखेगा और ये कपड़े नहीं पहनेगा तो भक्त नहीं बन सकता। तो कहने का अर्थ है कि हम बाल कटाने के उस पे था, मैं बाल कटाने जाते हैं, आपको उस पर फेथ होता है ना तो ही जाते हो, नहीं तो उस तरह लेके वो गले पे वो शेविंग कर रहा होता है, ऐसा भी कर सकता है उस तरह। तो फेथ अगर गलत इंसान पर रखोगे तो वो ऐसा कर देगा, और सही इंसान पर रखोगे तो शेविंग अच्छी होगी। तो फेथ होना और सही इंसान पे होना बहुत जरूरी है, वही नॉलेज देगा आपको कैसे भवसागर से पार जा सकते हैं। अभी लोग क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बाई चांस है, बाई चांस ऐसा हुआ। आप किसी से पूछोगे ना कि भाई ये कैसे उसको अंबानी के घर में जन्म मिला, बाई चांस, तो उसको बाई चांस है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि चांस से कोई भी चीज़ नहीं होती। जैसे वो उदाहरण देते हैं, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि मैंने पानी पूरी खाई, मैं बीमार पड़ गया, टाइफाइड हो गया, तो अगर मैंने पानी पूरी खाई, टाइफाइड हुआ, तो टाइफाइड की बीमारी के लक्षण में से गुजरना पड़ेगा। फिर लक्षणों में से मैं गुजरूंगा, जब बुखार आएगा, ठंडी लगेगी, भूख नहीं लगेगी, तो मैं उस समय ऐसा बोलूं बाई चांस मैंने टाइफाइड थी गई। तो ये मेरी नॉलेज है कि इग्नोरेंस है? इग्नोरेंस है ना, नॉलेज तो ना। नॉलेज तो ये है कि भाई मैं पानी पूरी खाधी બારની 10ની ઈચ્છા હતી 20ની ખાધી, પછી તો પેટના ભરાયું એટલે 30ની ખાધી, અને ગંદુ પાણી હતું, ત્યાં ગયા હોત જોવા ઘરે કરી તે પગ ઉપરથી બટેકા કરતો હતો, પગ બટેકા કરવાનું પગ ઉપરથી કરતો હતો ક્રશ, પાણી કેમ ટોયલેટમાંથી પાણી ભરી લેતો હતો ત્યાંથી, તો પછી ના પીધું હોત। तो ये कहने का अर्थ ये है कि आपको कारण आप नहीं पता और आप बोलो इग्नोरेंस है ना, ये तो आपको यही नहीं पता था कि आप फिर उसको चांस बोल दो, आपकी बाई चांस मुझे टाइफाइड हो गया, तो आपको हंसी आएगी कि नहीं? बाई चांस टाइफाइड नहीं हुआ, ये आपको इसके हुआ। तो ये नॉलेज है कि ये पता होना कि किसकी वजह से हुआ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी चीज़ चांस पे नहीं होती, हर चीज़ के पीछे कारण है, छोटी से छोटी चीज़ के पीछे भी कारण है। जैसे आप स्कूल में पास होते हो, भाई चांस पास थे, ऐसा होता है, आपने मेहनत की होती है इतनी, आप रात भर जगते हो, स्ट्रेस में आप पिक्चर देखने नहीं जाते, भाई आ रहा है, दो दूसरे काम होते हो साइड में रखते हो, मम्मी पप्पा लगन में जाए छे, मारे तो परीक्षा से लगन में नहीं जा सकूँ, कितना सब करते हो, फिर जाके मार्क्स आते हैं आपके, तब आपको बोलते हो ऐसे भाई चांस मार्क्स आ गया। तो बाई चांस नहीं होता, ये आपको एक ऊपर ऊपर उदाहरण दे रहा हूँ, ये बाई चांस नहीं होता है। अब क्या होता है, ये जो बाई चांस वाले लोग होते हैं ना, ये कलयुग में क्या होता है, फिर ये बाई चांस जब ये सूखा पड़ता है, अर्थक्वेक आता है, फिर ये बाढ़ आती है, उनसे पूछो क्यों हुआ, चांस, क्योंकि उनको पता नहीं है कारण। भगवान ने क्या कहा है कि भाई आप यज्ञ करो, यज्ञ मतलब संकीर्तन यज्ञ। आज की तारीख में
वैसा यज्ञ करना तो पॉसिबल नहीं है जैसे पहले होता था, जिसमें सब प्योर होते थे, ब्राह्मण भी प्योर होते थे, चीज़ें भी प्योर होती थी। आजकल तो जो चीज़ देखो 100% प्योर, मतलब 200% प्योर, 300, अब इससे ज़्यादा क्या प्योर होगा, 200 300, उसमें भी सब मिला हुआ होता है। वो पानी की बोतल लेने जाओ 100% ऑक्सीजन, क्या 100% पानी पानी है उसमें भी। तो आजकल कोई चीज़ प्योर नहीं रही, तो आप वैसा यज्ञ तो कर ही नहीं सकते, पर संकेत यज्ञ करो तो बारिश पूर्ति होगी, अन्न ठीक से उगेंगे, ये सब भगवान ने कहा है। जब अन्न उगेंगे तो आप सारे जीव ठीक से रहेंगे, इंसान भी रहेंगे, और क्योंकि जो चाहे वो नरभक्षी, वो क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस और कार्निवोरस बोलते हैं ना, एनिमल्स को भी, जो मीट खाते हैं और जो मीट खाने वाले एनिमल्स है वो भी किसके ऊपर है, डिपेंडेंट है, दूसरे जानवर के ऊपर। वो जानवर क्या खाता है, वो तो बाद में फिर घास ही खाता है ना, तो उसके लिए भी तो बारिश चाहिए ना। तो भगवान कहते हैं कि आप उसके ऊपर डिपेंड रहोगे। ये सब चीज़ों को जब नहीं पता होता है इंसान क्या बोलता है, बाई चांस बाढ़ आई गई, बाई चांस अर्थक्वेक थे, बाई चांस नहीं हुआ, ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि हम यज्ञ नहीं करते, भगवान का नाम नहीं लेते, तो कलयुग में जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो उसके दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं, और ये लोग बाई चांस बोलते हैं। पर हमें पता है कि हमें फेथ होना चाहिए कृष्णा पे, नहीं होता तो ये सब होता है। ठीक है, अभी हम इसमें फिर से एक स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। फेथ होना कृष्णा पे मतलब क्या है, फेथ होना भगवान पे, कृष्णा जी पे, इसका मतलब क्या है? कभी हैपनिंग्स हमारे सामने जो होती है, उसके पीछे कोई कंट्रोलर होता है कि जो इवेंट को कंट्रोल करता है। अगर वो सुप्रीम अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो पर्सनल है कि जिसके माध्यम से ये हुआ, मतलब वही इवेंट का जो कोज है वो कोई पर्सन है, तो ये एक हुई हमारे कृष्ण के ऊपर। अब लोग क्या कहते हैं, जो एक स्टेप और ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ मैंने फेथ है भगवान पर, वो रासलीला करीस, भगवान ने किया तो फिर हम भी करेंगे, भगवान ने किया, इतना फेथ है मुझे तो भगवान पे, जो भगवान ने किया वो मैं करूंगा, गोवर्धन भी उठाऊंगा, रासलीला भी करूंगा। क्यों ये बात आई कहाँ से? क्योंकि कई लोगों ने क्या बोला, जीसस क्राइस्ट कौन मछली खाता था, तो हमें क्या ना खाइए। राम भगवान, कोई एक ने तो प्रभुपाद जी का, राम भगवान, हमने तो पढ़ा है कहीं पे, राम भगवान भी मीट खाते थे। तो कहने का अर्थ है कि आपको भगवान पे जब फेथ होता है तो भगवान के जो उन्होंने बोला है ना उस पे फेथ होना चाहिए, वो जो करते हैं उस पे नहीं कि वो कर रहे हैं वो हमें करोगे तो वो फेथ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके इंस्ट्रक्शंस पे फेथ होना चाहिए, नॉट बाय मिमिकिंग हिज एक्शंस। जो उन्होंने किया वो मुझे करना है, ऐसा नहीं। कृष्ण भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला पूरी भगवत गीता में, मुंह रासले करो तमें कर दो, ऐसा नहीं बोला ना कहीं पे। तो उनके इंस्ट्रक्शंस पे फेथ होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन क्या दिए, बोलो बोलो, वो बहुत अच्छा श्लोक है। हाँ, मन मन भाव मद भक्तो मद याजी मम नमस्कार। तो मेरे को आप नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे सरेंडर हो, ये बोला। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप सोचते हो राम भगवान ने मीट खा लिया, तो वो तो आप पूरे अपने रुद्र रूप दिखाते हैं जब अपना कृष्ण भगवान, वो तो सब उनके मुंह में जा रहा था, वो नॉनवेज नहीं हुआ, वो तो सब कुछ खा सकते हैं। आपको वो नहीं फॉलो करना है, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करना है। वो कहते हैं जीसस तो मछली खाता था એટલે અમે नॉनवेज खाइए थे क्रिश्चियंस। जब उनको, जो प्रभुपाद जी ने बोला क्रिश्चियंस को कि आप क्यों, उसमें लिखा है कि यू शुड नॉट किल, thou shalt not kill, उनके उसमें बाइबल में लिखा है, तो आप क्यों खाते हो? तो वो भी खाते थे इसलिए। अरे भाई, तो उनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो करो ना फॉलो। आप वो क्यों मिमिक क्यों कर रहे हो? ऐसे तो कृष्णा जी ने पूरा इतने सारे जब दिखाया था अर्जुन को अपना रूप, तो उसमें तो सब इंसान अंदर जा रहे थे, तो ना नॉनवेज हुआ है। तो उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ये बहुत जरूरी है। तो जिनको फेथ नहीं होता, जो बाई चांस वाले होते हैं, वो गलत मतलब निकालते हैं, इसका गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अभी प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा उदाहरण देते हैं इस चीज के लिए कि कोई शर्म से पानी पानी हो जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई इंसान कृष्णा को साधारण मनुष्य समझता है और सोचता है कि उन्होंने किया वो मैं भी करूं, तो उदाहरण देते हैं सूरज का। बरोबर, મને પેશાબ લાગી રસ્તામાં જતો હતો હાઈવે પર, બહાર ઉતરી અમે કરી, બરાબર, પછી તાપ હતી, અડધો કલાકમાં શું થયું? ઇવાપોરેટ, राइट। तो अगर कोई इंसान चाहे, प्रभुपाद जी कहते हैं चाटो उसको, इवापोरेट करके दिखाओ, कर सकते हो। तो
थी तो गंदी चीज, यूरिन, और फिर भी सन को कुछ उसमें से वो लगा क्या उसका पाप कि भाई वो गंदे हो गए क्योंकि उन्होंने वो गंदी चीज को इवोपरेट कर दिया, उनको नहीं लगा। तो उस तरह से उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे सन है वो ऐसी चीज को भी इवोपरेट कर लेता, वो खराब नहीं होता, और हम अगर करना चाहें वही चीज, सुखाना चाहें चूस चूस के किसी का गिरा हुआ, तो हम नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग समझते हैं कि हम ऑर्डिनरी हैं कृष्णा, तो वो रास्कल्स हैं, नराधम हैं, इस तरह से वो ये बताना चाहते हैं। लेकिन कल मतलब थोड़ा एथिक मेंटालिटी वाला एक व्यक्ति था जिसके साथ मैं डिस्कशन ऐसे कर रहा था, तो मैं ऐसे कंपैरिजन दे रहा था, तो वो डायरेक्टली ऐसा बोला कि आपकी मेंटालिटी पर मेरे को हंसी आ रही है, क्योंकि आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हो, मतलब जिसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता उसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो। वो उनकी बुद्धि में नहीं समा रहा है वो कंपैरिजन, इसलिए। नहीं तो इस कंपैरिजन में गलती क्या है बताइए आप। अगर प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप 3 तरह से समझ सकते हो, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान, वो अगर हम सूरज के उससे समझ सकते हैं, सूरज एक लोक है, उसकी किरणें हैं, तो जब हम किरणें से समझ सकते हैं कि सूरज है, तो हम सोल से क्यों नहीं समझ सकते परमात्मा है, और परमात्मा सब में है तो भगवान का लोक है, वो क्यों नहीं समझ सकते। अगर ये किसी को, अगर ये कंपैरिजन या ये उदाहरण पचते नहीं हैं तो उनकी सोच में गड़बड़ है। ऐसे लोगों को थोड़े टाइम समझाना, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के जो उससे सीखते हुए आए हैं, तो जो सबसे बहुत दयावान वो थे इनकारनेशन, तो इसकी वजह से हम भी इन लोगों को थोड़ा ट्राई करते हैं ऊंचा लाने के, ऐसे लोगों को। पर मेरा फ्रैंक यही है ओपिनियन कि आप 2 बार 3 बार 4 बार समझाइए। ऐसे लोगों को अगर नहीं समझ आती है तो उनको कुछ नहीं, सिर्फ प्रसाद लीजिए और आके नाचिए कि तुम्हारा रविवार है तो मैस बंद हसे ने, बाहर तो 500 नीचे एक थाली कि 250 नीचे, અહીંયા मफत में प्रसाद ले लो, थोड़ा डांस ले लो, बस वहीं पर अटक जाना है ऐसे लोगों को, उससे आगे जाना ही नहीं। क्योंकि जब तक उनका शुद्धिकरण नहीं होगा अंदर से, तब तक आप कितना भी यहाँ पे डालोगे वो अंदर ही नहीं जा रहा है। वो जो पर्सन है वो दूसरे को भी फॉलो करेगा ना आपकी मेंटालिटी से। नहीं, वो तो प्रसाद लेके आके चले जाना है ना, वो भक्तों के साथ मिलेगा तो हो सकता है थोड़ा बस फायदा ही होगा उसको। नहीं मान रहे वो, आप उसको अगर नहीं मान रहे हैं तो आप उसको मत समझाओ, आप उसको सिर्फ बोलो प्रसाद ले और आके डांस करे। 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद उसमें फर्क नहीं दिखता है, वो सिंसियरली आता है, तो आप मुझे बोलना। कहीं उसमें से एक किरण आएगी, उसके दिमाग में कुछ गया। ऐसे लोगों को टाइम लगता है, इतने जन्मों से होते हुए आए, ऐसे थे ना एक बार में आपके बोलने से हो जाएंगे, इतने जन्मों से अभी वो क्या है। अभी हम उसी चीज पे आ रहे हैं। अभी ये आता है कि ये हमारे जो शरीर है वो क्षेत्र है। अभी हम बहुत प्रैक्टिकल चीज पे आते हैं कि अभी हमने बता दिया कि हम ह्यूमन बीइंग के उसमें आ गए शरीर में। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन, हम बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं, 2 ऑप्शन है हमारे पास, हम मेटेरियल जा सकते हैं या स्पिरिचुअल जा सकते हैं। स्पिरिचुअल जाएंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, मेटेरियल जाएंगे तो हम और गिर जाएंगे। अब इसमें प्रैक्टिकली होता क्या है, हमें ये पता पड़ गया कि हम ह्यूमन बीइंग, प्रैक्टिकली होता क्या है, धीरे धीरे हम बड़े हुए, हमारी एक्टिविटीज, अच्छा जो भी हम फील्ड ऑफ एक्टिविटी होती है, हमारे जो क्षेत्र होता है, वो हर एक इंसान या जानवर वो उसी क्षेत्र के हिसाब से काम करता है। कुत्ता होगा, उसको आप इंसान के जैसे बिठा के यहाँ लेक्चर नहीं सुन सकते, क्योंकि वो कुत्ते के जैसे काम करेगा, भौंकेगा, पत्थर दिखाओ भागेगा, फिर वापस आ जाएगा। हर एक जो उसको बॉडी मिली है उसके हिसाब से ही काम करता है हर एक। अभी होता क्या है, जब एक ह्यूमन बीइंग का मिल गया हमें शरीर, अब मैन होगा, वुमेन होगी, फिर क्या होगा, जैसे ये है, जैसे ठीक है, अभी ये लगेगी पहली गांठ, किसी चीज गांठ लगेगी, ये लड़की अच्छी लगी, उसकी गांठ, कॉलेज में गए और लड़की बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर थी, मजा ही आ रहा है जवानी, मारी जोड़े फ्रेंडशिप कर ले तो सारू, वो पहली गांठ लगी। फिर बाद में यार
छिछोरे मूवी જોવા ગયા હતા ને યાર મજા આવી है જોવાની पिक्चर આવી જ कोई एक सरस छोकरी पटावी જોઈએ फिर आप उसको ले गए होटल में फिर लगी दूसरी गांठ फिर આની જોડે તો મજા આવે છે યાર મારા આની જોડે જ લગ્ન કરવા છે फिर लगी तीसरी गांठ फिर लग्न कर ली फिर छोकरी के पहला पास तो कार છે આપણા હારા 2 વર્ષથી बाइक पर જ ફરીએ છે अब तो कमाना पड़ेगा शादी हो गई अब तो अभी तो सब घर वाले भी कह रहे हैं बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो कंटाड़ गए घर वालों से तो बच्चा करने को कह रहे हैं करना तो पड़ेगा पर फिर बच्चा होगा तब तक वो कार के लिए लोन वोन लिया होगा वो लोन पूरा होगा तब तक बच्चा हो जाएगा फिर बच्चा होगा वो बड़ा होगा सरकारी स्कूल में तो ना मुकाया है सरकारी स्कूल में શું ભણાવે છે પ્રાઇવેટ સ્કૂલમાં મૂકવું પડશે फिर एक और गांठ फिर अरे ક્યાર સુધી રેન્ટના ઘરમાં રહીશું આપણું ઘર હોવું જોઈએ પેલો જો तारो भाई कितलू सरस करे तो अपने को वहाँ से थोड़ा उसके पास है मेरे पास फिर एक बार गांठ लगती है तो हमारी वो गांठ हो जाती है एकदम स्ट्रॉन्ग फिर वो छोड़ने में बहुत टाइम लगता है इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये शुरुआत कहाँ से होती है पुंसाम स्त्रिय मिथुनी भवाम एताद एट्रैक्शन ऑफ मैन एंड वुमेन पूरी जो कायनात है मैटेरियल वर्ल्ड की वो एट्रैक्शन और सेक्स पे ही टिकी है अगर ये एट्रैक्शन और सेक्स हटा दो तो आज की तारीख में 50% पब्लिक अठवाडिये के अंदर सुसाइड कर लेगी क्योंकि आपको एट्रैक्शन ही चला गया तो क्या रही शू क्यों बची बराबर तो आपको जितना भी पता हो हम ह्यूमन बीइंग है हमें ये लाइफ मिली हमें स्पिरिचुअल पे जाना है और मैटेरियल पे नहीं जाना है पर आके कहाँ पे अटकती है बात मैंने छोकरी कॉलेज में गमी फिर वहां से चालू हुआ पहली गांठ फिर दूसरी गांठ तीसरी गांठ अभी वो गांठ निकालनी है तो गांठ निकालनी तकलीफ होती है धीरे धीरे वो गांठ निकलती है जब बाई चांस आप भगवान का कोई आपने कुछ किया होगा पिछले जन्म में कोई भक्त आपको मिल जाता है वो आपको लेके आता है मंदिर में वो आपको बोलता है लेक्चर अटेंड कर दो प्रसाद ले जाओ तो आप आते हो लेक्चर अटेंड करते हो कोई आपके पुराने कर्म की वजह से आपको थोड़ा अच्छा कर्म की वजह से आप मंदिर में जुड़ते हो तब वो धीरे धीरे गांठ खुलनी शुरू होती है और ये गांठ बहुत टाइट होती है फिर इंसान किस में फंसता है धर्म अर्थ काम मोक्ष तक तो पहुंच ही नहीं पाता है धर्म अर्थ काम में आके फंस जाता है धर्म का सहारा लेके फिर वो कमाना शुरू करता है ठीक है तो कैसे भी तरीके से अर्थ कैसा भी आना चाहिए बस पैसा काम कैसा भी हो चोरी चकाटी हो कैसे आने चाहिए चोरी चकाटी मतलब आज की तारीख में सोफिस्टिकेटेड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चोरी चकाटी ऐसे नहीं होती कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सोफिस्टिकेटेड होती है 500 ની વસ્તુ 5000 માં આપવાની એટલે ચોરી ચકાટી લીવાઇસ માં જાઓ લાગે હારો 500 ની ટી-શર્ટ છે 5000 માં પછી કે 20% ऑफ तो 4000 में पड़से वो एक तरह की चोरी चकाटी है सीधे कोई आपको चाकू दिखा के नहीं लूट रहा है ऐसे करके लूट रहे हैं तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष तक तो पहुंचता ही नहीं है इंसान धर्म और काम में ही आके अटक जाता है और फिर क्या होता है ये करते 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 जिसकी ये नहीं खुल पाई वो ऐसे में ही फिर ऊपर चला गया फिर उसने जो जैसा उसकी मेंटेलिटी रही जैसे भगवान ने कहा भगवत गीता में जैसा उसका मन रहा पूरी जिंदगी भर उसने जो किया है मन बुद्धि अहंकार लेके वो दूसरे शरीर में जाएगा तो जिस शरीर में गया फिर उसके हिसाब से ही वो एक्टिंग करेगा क्योंकि सब लोग भरत महाराज के जैसे नहीं होते कि उनको याद रहे कि मैं पिछले जन्म में मैंने वो डियर को बहुत प्यार कर लिया था इसलिए मेरे को ये डियर का जन्म मिला है सब लोगों को ऐसा नहीं मिलता भक्त को तो वो फिर बेचारा अगर उसने जिस जन्म में उसने इस जन्म में उसने जिस चीज़ पे ज़्यादा किया माइंड को लगाया वैसा शरीर मिला फिर शरीर में से होते होते फिर क्या होता है जब नया शरीर मिल जाता है ना जब तक आप ह्यूमन बीइंग में नहीं आते तो वो आपका एडवांसमेंट ऑटोमेटिकली होता है ह्यूमन बीइंग में ही ऐसा है कि आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ पर जब तक आप दूसरे उसमें हो योनि में तो योनि में तो एडवांसमेंट ही है पानी से फिर लैंड वाले जीव पे फिर बाद में उड़ने वाले पे फिर वो 4 पैर वाले पे फिर बाद में आप 2 पैर वाले पे फिर ऐसे ऐसे एडवांसमेंट ही और वो तो आपको वो स्टेज पे तो पास होना ही पड़ेगा उसमें कितने भी साल लग सकते हैं कितने करोड़ों जन्म लग सकते हैं और वो उसमें पास होना ही पड़ेगा इसलिए ह्यूमन जन्म बहुत वो है पर ये हम बोलते तो हैं ह्यूमन जन्म बहुत ही ये है हम पर आके फंसते कहाँ हैं पहली घाट पे जब तक वहाँ से अगर हम बचना शुरू हो जाए इसलिए कैसे वैदिक में सिखाया गया है पहले ब्रह्मचारी फिर गृहस्थ
पहले ब्रह्मचारी का सिखाओ कि भाई आप ये इसमें ना फंसो इसलिए, और फिर भी अगर फंस गए तो गृहस्थ में एक से खुश रहो। प्रभुपाद जी क्या कहते थे, वहाँ इंग्लिश भक्त थे इसलिए उनको फिर क्या, तो उनकी भाषा में समझाना पड़ता है इंग्लिश भक्त को, जो जल्दी समझते नहीं है ना, फिर क्या होता है पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में समझाना, मोदी कहता है ना ऐसे। प्रभुपाद जी कहते थे, જ્યારે when you have one vagina at home, why you are searching for different vaginas? તમારી વાઈફ છે એની પાસે બધા પાર્ટ્સ છે તો પછી તમે કેમ શોધો છો? तो उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता था, क्योंकि वो लोग उस समय जो वेस्टर्न लोग थे वो इन चीज़ों में पूरी तरह से मिक्स थे। वहाँ पे जाके प्रभुपाद जी को समझाना मतलब उनकी भाषा में समझाना पड़ा, तब उनके बात तो साची है यार, तब ऐसा जाके उनको हुआ रियलाइजेशन। अच्छा, अभी यह है कि ये हमें सब पता पड़ गया, ग्रंथि को तोड़ना है, ये भी पता पड़ गया हमें ये ह्यूमन बीइंग का मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है। अभी ये करना कैसे है, एक ग्रंथि को तोड़ना कैसे है? तो चैतन्य महाप्रभु जी क्या कहते थे, जब उनसे किसी ने पूछा ग्रस्त भक्त में कि एक जिसको थोड़ा बहुत ये पता पड़ गया है, जो वैष्णव अभी हुआ है और थोड़ा बहुत उसको आइडिया आ गया, वो कैसे इन चीज़ों में से ग्रंथि को तोड़े, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, असत संग त्यागी ए वैष्णव आचरण। असत संग को त्यागना। अभी क्या असत संग का मतलब होता है कि नॉन डिवोटीज। अभी आप बोलोगे कि अरे मारो फ्रेंड तो है, सारो ज छे ने, मारो फ्रेंड है कॉलेज में के सारो ज छे, वो कोई लत नहीं पण डिवोटी नहीं है, तो पर चैतन्य महाप्रभु कीधुं छे के एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज ने काढी दो, तो मारी जो एनी जोड़े बात नहीं करवानी। એટલે તમારે દરેક એનો मीनिंग खबर होवी જોઈએ એની પાછળ। व्हेन समवन सेज, कोई चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं कि असत संग त्यागी ये वैष्णव आचार, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बताना चाह रहे हैं कि नॉन डिवोटीज का आप एसोसिएशन त्यागो, तो नॉन डिवोटी कौन है वो पता होना चाहिए, तो आप उनका त्यागोगे ना। नॉन डिवोटी वो है जो स्त्री संगी कृष्ण, असत स्त्री संगी कृष्ण भक्त, वन हु इज टू मच अटैच टू मैटेरियल एंजॉयमेंट। आप देखते हो कि उसके पास साइकिल है पर वो हमेशा मेरे साथ यही बातें करता है कि यार कैसे मेरे पास बाइक आ जाए, कैसे लड़की आ जाए। अगर उसको यही दिख रहा है लड़की, और आप उसके साथ बात करते हो और उसको यही दिख रहा है कि भाई मैं कैसे मैं ये करूँ, वो मेटेरियल एंजॉयमेंट फंसा है, तो दैट इज नॉन डिवोटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो सोचो कि यार वो तो मंदिर नहीं आता है तो नॉन डिवोटी है कि क्या है, तो मैं उससे बात करूँ कि नहीं करूँ, मेरा कैसे मैं आगे बढ़ पाऊंगा, कैसे मैं ये ग्रंथि को निकाल पाऊंगा। तो नॉन डिवोटीज जो है वो उसका मतलब ये प्रभुपाद जी बताते हैं, नॉन डिवोटीज का मतलब है जो मैटेरियल एंजॉयमेंट में बहुत ज़्यादा जो अटैच होते हैं वो नहीं है, वो डिवोटी है। ठीक है, उनके साथ आप मिक्स हो सकते हो तो ही आप ये निकालो, नहीं तो क्या होगा, कोयले के साथ रहोगे तो कितना भी आप मंदिर में आ जाओ सैटरडे को अटेंड करने, पर आप बाकी के 6 दिन आपके फ्रेंड के साथ उसके साथ हो जो आपको बोलता है कि भाई केवी मस्त छोकरी थी, केवी मस्त छोकरी थी। एक दिन आप यहाँ सीख के जाओ, 6 दिन वो सुनोगे, तो आपका प्रभाव किसका ज़्यादा पड़ेगा? यहाँ सीख के जाओगे, थोड़ा बहुत दिमाग में गया, फिर बाहर जाकर तो यही कहते तो सरस छोकरी थी, तो कोई उसका मतलब नहीं रह गया फिर। ठीक है, तो आपको अगर ये त्यागना है तो आपको एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज करना पड़ेगा। तो ये आपने कैसे करना है उसका ये बात हुआ। दूसरा है, एक डॉक्टर पटेल अपने गुजरात के थे जो प्रभुपाद जी के साथ, प्रभुपाद से ज़्यादा उम्र के थे जबकि वो, और वो भी वेद बहुत पढ़े हुए थे, पर वो क्या हो गया, तो मैं तो બધું જ વાંચ્યું છે, मैं तो બધું વાંચ્યું પછી ઇસ્કોનમાં આવ્યો છું, वो ऐसे थे। तो वो सब जगह का लेके आते थे और फिर प्रभुपाद जी पे बम्बार्ड करते थे। प्रभुपाद जी उनको भी सीधी पटरी पे लाते थे, क्योंकि वो बहुत सारी नॉलेज लेके आते थे, गलत टेढ़ी सीधी, तो उनको फिर सही नॉलेज पे लाते थे प्रभुपाद जी। तो वो उन्होंने एक बार बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, उन्होंने कहा कि कल्चर और एजुकेशन में क्या फ़र्क है? कल्चर और एजुकेशन में क्या फ़र्क है? एजुकेशन क्या है आजकल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्रभुपाद जी कहते थे कि ये एजुकेशन है। और कल्चर क्या है, जो वो उसमें उदाहरण देते हैं चाणक्य पंडित का, मात्रवाद परादारेसु। उसका मतलब क्या है कि अपनी बीवी के अलावा जो भी स्त्री मिले वो उनको माँ समझना चाहिए, ये कल्चर है। अगर आप डिग्रियां पे डिग्रियां ले लो, ये डिग्री वो कॉलेज की डिग्री वो, पर अगर आपको ये नहीं हुआ तो आपका कल्चर नहीं है अगर आपके पास, और एजुकेशन की डिग्रियां है यूजलेस।
राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने उनको ये उदाहरण देके समझाया था। फिर क्या होता है, जब आप भगवान देखते हैं कि आज असत्संग को त्याग दिया है और डिवोटीज के साथ है और वो कल्चर भी है इस बंदे में, तो वो फिर आपको अंदर से ही प्रेरणा देते हैं, वो आपको गुरु के पास ले जाते हैं। तो जो वो देखते हैं कि ये सच में मेरे प्रति समर्पित हो रहा है, तो वो आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से रास्ता दिखाते हैं। पहले आपको अंदर से रास्ता दिखाते हैं, आपको कहेंगे कि चल आज मारी ઈચ્છા નથી પણ आज खबर नहीं केम इच्छा थी कि मारे आज मंदिर जावानी, ऐसे एक इच्छा है आपको अंदर से देंगे। इस तरह से वो आपको मार्ग दिखाते हैं जाने का। तो अगर आप आपके वो वाले दोस्त को भी अगर आप इस तरह से उनको सिर्फ और प्रसाद के लिए और उसके लिए बोलोगे ना, तो वो इच्छा प्रकट होगी। देर लगेगी क्योंकि स्टोन हार्ट हो गया होता है ना, उसको फिर बहुत वो अपना चेतो दर्पण मार देना, देर लगती है वो पर होगा। अच्छा, अभी क्या था, हाँ अभी ये कहते हैं कि ठीक है हमें मानी गया कि भाई કૃષ્ણ ઉપર ફેથ આવી ગયો મને પૂરું। તો હવે મને એ કહો કે જ્યારે ભગવાન તમે કહો છો કે અંદર છે, इनसाइड आउटसाइड है, તમે અત્યારે કીધું कि भगवान आपको देते हैं, ठीक है, ये कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूँ मैं। अभी आपने किसी को ऐसा समझाया कि आपने ये सब किया, नॉन डिवोटीज के साथ नहीं रहे और आपने कल्चर अपने में ग्रो किया, और मुझे आप बोल रहे हो कि भगवान अंदर से और बाहर से आपको हेल्प करते हैं, तो गलत काम करवाते क्यों है मेरे से? मेरे से गलत काम करवाते क्यों? जो मेरे अंदर ही है, मेरे से गलत काम क्यों करवाया? अब चोर आके बोले मैंने चोरी की, तो कहते मेरे अंदर भगवान है तो मैंने मेरे से गलत काम क्यों करवाया? वो नहीं करवाते चोरी। तो वो लोग ऐसे भी हैं बोलने वाले जो इस डायरेक्शन में ले जाते हैं, मेरे अंदर ही भगवान है तो मेरे से गलत काम क्यों करवाया। हाँ बोलिए। हमारी डिजायर होती है ना, हाँ वो डिजायर हमारा टूटते हैं, भगवान तो भी सैंक्शन ही करते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपने कत्ल किया किसी का और आप गए कोर्ट पे, केस चला, जज ने लिख दिया कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, तो जज गलत है कि आप गलत हो? कौन गलत है इसमें? जज गलत नहीं है ना, जज ने तो जजमेंट दिया, गलत काम तो आपने किया है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसी तरह से भगवान, आप सैंक्शनिंग जैसे कहा, भगवान जजमेंट दे रहे हैं और आपके हाथ में है कि आप गलत करो या सही करो। तो अगर कोई ये बोलता है आपको आके कि भाई मेरे से गलत काम क्यों करवा रहे हैं, मेरे अंदर ही है भगवान, तो भाई वो सैंक्शन, वो आपको जजमेंट दे रहे हैं कि आपने गलत किया, पर कर तो आप रहे हो, क्योंकि भगवान ने इतनी इंडिपेंडेंस हमको दी है, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दी है, सही है गलत करने की। आप सही भी कर सकते हो, गलत पर आप ये सब भगवान पे नहीं डाल सकते कि भगवान ने मेरे पास से करवाया, कर आप रहे हो, और फिर बाद में पोटली भगवान पे नहीं डाल सकते उन्होंने करवाया। अभी ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा ही करके ख़त्म करेंगे। कितना टाइम बाकी रहा प्रभु? ख़त्म होने आया? हाँ ठीक है। अभी प्रभुपाद जी एक और कहते हैं कि इसमें लोगों की गलती कहाँ पे होती है, लोग क्यों कहाँ हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं और कहाँ उनको जहाँ मिलनी चाहिए वहाँ नहीं ढूंढते, और क्या ढूंढ रहे होते हैं। जैसे अगर मुझे सोना ढूंढना है, ठीक है, जैसे हुआ था ना कांग्रेस के राज्य में, आपको पता नहीं, आप लोगों को याद होगा, मैं तो नहीं वो नहीं, कांग्रेस के राज्य में जब थे लास्ट के 2012-13 में, उनको पता पड़ा कि भाई यहाँ पे सोना है और उन्होंने खुदवा दिया पूरा, वहाँ पे कोई सोना निकला ही नहीं। उनके जगह सोना होगा तो भाई हम और लूट मचा सकेंगे, है ना। कहीं हुआ एमपी में, राजस्थान में कहीं पे हुआ था, हाँ कहीं पे हुआ था, उन्होंने बहुत वो ढूंढा कि यहाँ पे तो सोना मिलेगा ही मिलेगा, पर नहीं मिला। तो क्या होता कि उनको हैप्पीनेस ढूंढनी कहाँ है और ढूंढते कहाँ पे हैं। जब वो आपको जब तक नॉलेज होगी कि भाई हैप्पीनेस यहाँ पे है, तो आप सही जगह पे सोना ढूंढोगे। आपको यही नहीं पता कि हैप्पीनेस है कहाँ पे और आप ढूंढ कहाँ पे रहे हो, तो उसका उदाहरण प्रभु जी देते हैं नारियल से। नारियल बाहर से कैसा होता है, सख्त एकदम हार्ड, और उसका मेन मटेरियल कहाँ होता है, मलाई और पानी, दोनों अंदर होते हैं। और पूरी दुनिया प्रभुपाद जी कहते हैं कहाँ खेल रही है, नारियल के ऊपर छोर से, उसके फाइबर से खेले जा रही है। आऊ ना हो જોઈએ, आ कड़क छे, आम छे, सब बाहर से खेल रहे हैं, पर उनको मेन क्या है, अंदर है। बाहर से खेलने का मतलब क्या है, आज की तारीख में बड़ी बड़ी जो सरकारें चलती हैं वो दो चीज़ों पे चलती हैं, कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्ट। उसका मतलब क्या है कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट का? कम्युनिस्ट लोग जैसे रशिया, वो कम्युनिस्ट है, जैसे अपने भी यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, CPI। कम्युनिस्ट क्या सोचते हैं, सब चीज़ों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए,
कोई एक अमीर कोई गरीब नहीं होना चाहिए। कैपिटलिस्ट क्या सोचता है कि भाई एक अमीर और बाकी वो अपने नीचे रखता है काम करने वाला, वो उस तरह से कैपिटलिस्ट। और कम्युनिस्ट क्या सोचता है, सबके पास एक जैसी होनी चाहिए, अगर इसके पास 1000 रुपये और उसके पास 10 रुपये, लाओ चलो निकालो, सबके पास सेम पैसे कर दो, वो कम्युनिस्ट। ठीक है, तो ये दो तरह से दुनिया चलती है। पर ये दोनों लोग क्या है, कहाँ ढूंढ रहे हैं, वो जो नारियल का बाहर का है ना पोर्शन, उसी में ढूंढ रहे हैं, और अंदर का जो पानी है उसमें नहीं ढूंढ रहे। तो जो जहाँ पे इंजॉयमेंट मिलना चाहिए सोल के अंदर, वहाँ नहीं ढूंढ के वो बाहर बॉडी में ढूंढ रहे हैं। उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ये नारियल के हिसाब से देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सोने की बात को चीज बताई, वो अभी ये लास्ट एक चीज बोल के मैं खत्म करूंगा, वैसे तो है थोड़ा और। इसमें प्रभुपाद जी को एक भक्त ने आके कहा कि जो कि हर जगह उनके सेंटर्स ओपन हो रहे थे उस समय, अमेरिका से, कोई यूके में हो रहा था, कहीं पे हर जगह पे हो रहे थे। उसमें जापान में हुआ था उस समय सेंटर ओपन। अब जापान में सेंटर ओपन हुआ तो उनके हर एक जगह के न्यूज़पेपर जो मीडिया होती है वो अलग अलग होती है। वहाँ की मीडिया ने कुछ खराब लिख दिया इस्कॉन के बारे में। तो एक इंसान, जब प्रभुपाद जी मेरे ख्याल से मद्रास में थे 1976 में, मद्रास में थे, हाँ 1970, जब एक साल पहले जब उनकी तिरोधान हुआ यहाँ से, जो डेथ हुई तब उससे एक साल पहले 76 में वो जब मद्रास में थे, तब किसी ने उनको आके बताया कि जापान में तो आવું લખી દીધું પેપરમાં मीडिया वाला। तो उन्होंने क्या कहा कि क्यों अच्छी चीजें नोटिस में नहीं आती लोगों को, इसको इतना कर रहा है वो नोटिस में नहीं आएगा, पर वो क्या धोनी ने एक कैच छोड़ दिया तो वो याद रहेगा, इतने कैच पकड़े वो याद नहीं रहेगा। उसी तरह से जब इतना सारा इसको कर रहा है तो वो याद नहीं आएगा, पर लोगों को क्या दिखेगा, वो एक लाइन जो खराब लिख दिया ना। तो प्रभुपाद जी उसमें भी पॉजिटिव ढूंढते हैं। जिस भक्त ने आगे कहा वो दूसरे को मिशन से था, भक्त तो नहीं था, वो दूसरे कोई नॉर्मल इंसान था, वो रामकृष्ण मिशन या ऐसे किसी में से था जिसने आके ये बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि वहां पे कुछ लिखा है, इसका मतलब है कि मेरी वहां प्रेजेंस है। अगर मैं वहां पे मेरी प्रेजेंस ही ना हो, प्रेजेंस मतलब मेरी हाजिरी है वहां पे जापान में भी, कोई मेरा गलत कब लिखेगा, जब मेरा कुछ वहां पे होगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा कहाँ है बताओ उसमें भी पॉजिटिव ढूंढ लिया उन्होंने, तुम्हारा तो वहां प्रेजेंस ही नहीं है, मेरा प्रेजेंस तो है इसलिए तो कोई लिख रहा है। तो ये कैसे हम हर चीज में पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, वो प्रभुपाद जी ने हमें बताया। मेरे ख्याल से और भी है, पर अभी इतना प्रभु इनफ है आज के लिए। हरे कृष्ण।